Namaskar. Welcome to the Plan B show. We have healthcare segment in focus today, and we are joined by Dr. Ishwar Gilada, who is a consultant doctor of infectious diseases at Unison Medicare and Research Center. डॉक्टर वेलकम टू द शो। मेरा बस आपसे नमस्कार मेरा बस आपसे एक ही सवाल है कि आयुष्मान भारत की जो अभी ग्राउंड पे स्थिति है, द ग्राउंड रियलिटी ऑफ आयुष्मान भारत, द पेनिट्रेशन विच हैज बीन फ्लैग्ड एज one of the major schemes by this government, where do you see the reality, the ground reality, as far as the penetration of the scheme is concerned? Now, the problem is, when they empanel the hospitals and when they fix up the charges remain the same, whether it is for a rural hospital, tier 1 city, tier 2 city or tier 3 city. So, for example, say for cataract, they provide 5,500 rupees. For cataract with some kind of intraocular lens, they provide 9,000 rupees. So that 9,000 rupees same for a smaller place, for a middle level place, or for a place like Mumbai or Delhi or Calcutta or Chennai. So there is a major hesitancy there, where you want to get a quality service. You cannot equate Mumbai land price or maintenance cost or the salaries of the staff or any kind of expenses with that of a small place, which is a taluka place, which has a population of 1 lakh or so. So in that sense, what happens is, then you don't get a quality service, or the doctors who are running that kind of system or service, they would try to extract money from somewhere else. Okay. We have always seen in PMJAY that there are a lot of major frauds created by some hospitals where surgeries are not done, and though they have listed so many surgeries done. The intraocular implants were not put, they shown that it was done. So, and only on audit, they found that such kind of frauds are done. Now, when you find fraud at one place, that means frauds are done at least at 10 places. So, you cannot we cannot expect PMJAY or any audit authority to go to all the empaneled hospitals and do audit of everything. So, if they provide a service which is at a different level of cadres, tier 1 city, tier 2 city, tier 3 city, 5,000, 7,000 or 10,000 like that, it will work. But if they put all the cities or all the places in one platform and expect the doctors or hospitals to cater to their patient at that rate, it is not going to be possible. So the bottom line जो आप बोल रहे हैं वो ये है कि मतलब अलग अलग शहरों के हिसाब से आयुष्मान कार्ड का निर्धारण होना चाहिए. There should be different price mechanisms for different cities. Am I right? Yes. अरे आप सोचो कि अगर एम्बुलेंस की सर्विस, कार्डियक एम्बुलेंस की सर्विस मुंबई में चाहिए, और कोई सर्विस आपको छोटे गांव जैसे कोल्हापुर, सातारा और इसमें चाहिए, वहाँ के रेट में यहाँ के रेट में फर्क होगा. अगर आपको सर्जरी करना है, मैं जो क्लिनिक का यहाँ पे रेंट देता हूँ या क्लिनिक का जो मेरा मेंटेनेंस है, उससे हाफ मेंटेनेंस में मुझे तालुका प्लेस में जगह मिल जाएगी. तो मैं किसी को जो सर्विस प्रोवाइड करूंगा मेरे क्लिनिक केस में या ऑपरेशन थिएटर में या हॉस्पिटल में, वो रेट में कैसा प्रोवाइड कर सकूंगा जो एक छोटा गांव करता है. तो उसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रेट मेरे को ज्यादा है. अगर मैं मेरा क्लिनिक दूसरे गाँव में लगाऊं तो रेट कम है, हाफ से कम है. तो गवर्नमेंट भी जो हमारे से वसूल करता है कोई भी चीज, रेंट है या इवन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का जो यहाँ पे रेडी रिक्टर रेट है मुंबई में, वो तालुका प्लेस में कैसा होगा. तो आपको ये ध्यान देना ही पड़ेगा कि जो चीज यहाँ पे है, जो चीज थोड़े डिस्ट्रिक्ट प्लेस में है और तालुका प्लेस में है, वो फर्क पड़ेगा. और आपको चाहिए तो आपको करना पड़ेगा कि आप जो सर्विस जहाँ पे ले रहे हैं वो हिसाब से आप उसको वो बदला बराबर दो. So the bottom line with what Dr. Ishwar Gilada is saying is that the government needs to take into consideration the real estate and the reality costs which are incurred by doctors as of now, or maybe the clinics. Dr. Ishwar, अभी मुझे एक चीज और बताइए आप बस कि इस वक्त इस लूपहोल की वजह से कितना करप्शन है रैम्पेंट, मतलब कितना ज्यादा करप्शन हो रहा है इस लूपहोल की वजह से. करप्शन तो 1 साल पहले भी हो रहा था, शायद लॉकडाउन में बहुत ज्यादा हुआ. लॉकडाउन में स्टार्टिंग में 3-4 महीने कोई ऑपरेशन हुए नहीं, लेकिन अभी ऑपरेशन शुरू हो गए. अब लॉकडाउन में क्या है कि प्राइवेट मशीनरी पूरी काम कर रही है,
लेकिन गवर्नमेंट मशीनरी में जो फ्रंट लाइन है वो अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे मुंबई के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या भी यहाँ का बीएसटी बस सर्विस है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आप कई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ पे 10% 15% लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग घर पे हैं, और वो सब इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन उनको कब लगे तब वो काम पे आए। आप कोई इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाओ, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ कोई है ही नहीं। जब हार्डली 100 में से 10 स्टाफ काम करता है, तो जब ऐसे हालत वहाँ पे है, तो वो लोग जाके ऑडिट कैसा करेंगे, फ्रॉड कैसे पकड़ेंगे? तो फ्रॉड बढ़ते जाएगा, क्योंकि जो फ्रॉड करने वाला इंसान है वो भी देखता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो कोई देख रहा है क्या, मुझे कोई मॉनिटर करेगा क्या, और जैसे कोई ऐसा स्कीम बता लेगा कि इसके अंदर हमको क्या करना है। बेसिकली जैसे लॉकडाउन के पीरियड में भी हुआ, जो हॉस्पिटल में हुआ, कि आप उनको कुछ रेस्ट्रिक्शन कर दिए कि बेड का चार्ज है, मैं आयुष्मान भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ, कि ऑर्डिनरी बेड की कॉस्ट है 4,000 रुपया, आईसीयू बेड की कॉस्ट है 7,000 रुपया, और वेंटिलेटर की कॉस्ट है 10,000 रुपया। डॉक्टरों ने क्या किया या हॉस्पिटल ने क्या किया, पीपीई किट में कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़ा दी, मास्क में कॉस्ट बढ़ा दी, या मेडिसिन में कॉस्ट बढ़ा दी, या इन्वेस्टिगेशन रोजाना कुछ करने लगे जो 4 दिन में एक बार किया तो चलते थे, या मेडिसिन की कॉस्ट में वसूल करने लगे। तो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट उसको जिसको चलाना है, उसको जितना खर्चा कर रहा है उसके ऊपर 10% 20% प्रॉफिट कमाना है। आप सोचेंगे कि वो खर्चा 10,000 कर रहा है और 5,000 में सर्विस दो, हो सकता है पहला महीना देगा, क्योंकि दया होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, सिंपैथी होती है, एम्पैथी होती है। 1 महीना 2 महीना होगी, उसके बाद में तो वो सोचेगा कि मैंने जो 2 महीने में लॉस किया मुझे 6 महीने में वसूल करना है, तो वो किसी ढंग से वसूल करेगा।